Welcome everyone. So today we'll discuss structures. Okay. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली स्ट्रक्चर को समझने से पहले we'll start with array, right? We'll try to compare structures with array, so it would be better to understand, right? तो array क्या था? Array is a collection of homogeneous data values और homogeneous data elements, right? बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो नो जो डेटा है वो होमोजीनियस यानी सेम टाइप का हो। लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो हमारा डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, राइट? सो इफ़ वी हैव हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ डेटा, लाइक इफ़ आई टेक वन एग्जांपल, देन सपोज मुझे एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। अब उसमें स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट की एज, राइट, स्टूडेंट का मे बी फादर्स नेम, उसकी परसेंटेज। ओके, सो ऑल दीज वैल्यूज आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप। लाइक अगर मैं नेम और फादर्स नेम की बात करता हूँ, सो इट वुड बी अ स्ट्रिंग, एज मे बी अ इंटीजर वैल्यू, देन परसेंटेज मे बी अ फ्लोट वैल्यू. So we have variety of data. So in such kind of situation, we cannot go with array, right? So here we need structure, right? So if we go by the definition, so structure is a collection of different type of data, heterogeneous type of data, right? And all the data, all the data is would be grouped under a single name, and that name is nothing but a structure, right? Now we can store a large amount of heterogeneous type of data in a structure. Then structure is a user defined data type. Okay, so user defined data type means before using structure we have to define it, right? डिफाइन करने का मतलब क्या है कि वी हैव टू वी हैव टू डिफाइन लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेटा वुड बी स्टोर्ड अंडर अ स्ट्रक्चर. ओके, तो एक तरह से दो स्टेप हो जाएंगे. सबसे पहला हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन स्टोर द डेटा. ओके, so obviously if we go by the difference between array and structure, so the fundamental difference is कि जो हमारा array था वो एक derived data type है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. ये पहला डिफरेंस है. दूसरा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा, और स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा. नाउ व्हाट इज द सिमिलरिटी? लाइक एरे, स्ट्रक्चर में भी जो मेमोरी एलोकेशन है वो सिक्वेंशियल होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए जो कीवर्ड है वो क्या होता है? स्ट्रक्ट, राइट? So obviously why we need structure? Because in array we the all the data must be of same type. So if we have variety of data, if we have heterogeneous kind of data, then we have to go for structure. अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास जो जो डेटा है वो इट मे बी ऑफ इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप. लाइक if we take example of like you know uh, we want to we want to store the list of materials. So a material list may have, it may have the name of each item, right? Then part number, dimensions, weight, cost. So name may be a string, part number again it may be again it may be a string, alphanumeric kind of part number may be there. Then dimensions, integer, weight again it may be integer, or we can take it as float, and cost. So we are having variety of data here, so we have to go for structure. अब जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. अब ये जो डेफिनेशन है, प्रिफरेबली हम इसे कहाँ पे लिखते हैं? ग्लोबल सेक्शन में, आउटसाइड मेन फंक्शन. अब मेन के बाहर लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि हम इस स्ट्रक्चर का जब वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएंगे तो
वो वेरिएबल हम किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, then it would be unknown to the other functions, right? So what is the syntax for declaration? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, struct, that is the keyword, then structure का नाम. Okay, so this name obviously it would be given by us, so we have to follow the same kind of rules जो हमने आइडेंटिफायर के लिए पढ़े हैं. ठीक है, then opening braces. Now here we'll write all these are basically what, name, age and percentage, these all are the members, right? These are the members. So obviously we can take as many members as required, right? So we'll take all the members along with their type, जैसे name है, string है, age है, integer है, percentage हो सकती है, father's name, you know, and other members may be there. So again, कितने मेंबर लेने हैं ये कौन डिसाइड करेगा, यूजर डिसाइड करेगा, राइट? एंड फाइनली जब सारे मेंबर्स आपने ले लिए, फाइनली व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ क्लोजिंग ब्रेसेस एंड देन सेमीकोलन. दिस सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो रिमेंबर दिस. So as I have already told you, this name, age and percentage, all these are known as members of the structure. So what we have the name of the structure and then we have the members of the structure. अब जो अगला स्टेप आता है, अभी हमने एक स्टेप कवर किया है, स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया है, राइट? उसकी डेफिनेशन लिखी है. अगला स्टेप आता है, अब हम उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ओनली देन वी कैन स्टोर द डेटा. अब सपोज अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, सपोज मेरे पास दो स्टूडेंट हैं जिनका मुझे डेटा स्टोर करना है. सो आई कैन टेक टू वेरिएबल्स. लेट्स से आई हैव रिटन स्ट्रक्ट स्टूडेंट. तो ये क्या है, बेसिकली ये हो गया टाइप. ठीक है, जैसे आप कोई भी, सपोज आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देन व्हाट यू राइट इंट एंड सपोज वेरिएबल का नाम है एक्स. सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ इंटीजर वेरिएबल एक्स. सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे आपने इंट लिखा है, here I have written struct student, then s1 and s2, these two are the variables, right? अब अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे देखो तो s1 क्या है, एक स्टूडेंट है. अब इस s1 से रिलेटेड हमारे पास तीन चीजें हैं. s1 का नाम है, एज है और परसेंटेज है, राइट? सेम फॉर s2. s2 का भी फिर से s2 का नाम, उसकी एज और उसकी परसेंटेज. ठीक है. नाउ द अदर सिनेरियो में बी, like suppose I have, I want to store the information for 100 student. So what I do, should I take 100 different variables? So that is one way. The other way is, हमने array पढ़ लिया है already, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एक array create करेंगे. So what I'll write struct student then s100. तो ये जो है, this is called array of structure, right? So what we'll have here, पहला जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, s0. दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, s1. सो इट विल गो अप टू s of 99. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज हमने अभी डिस्कस किया था कि s1 s2 दो स्टूडेंट है. तो s1 का क्या है, नेम है, उसकी एज है और परसेंटेज है. नाउ सेम फॉर s2 एंड s3 एंड s4 एंड सो ऑन. नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट कि जो भी आप नेम इनपुट करा रहे हो वो s1 का है या s2 का है, राइट? सो द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर. जैसे सपोज मुझे s1 का नेम चाहिए, सो व्हाट आई राइट s1 डॉट नेम. सो दैट इज s1 इज व्हाट, दैट इज द वेरिएबल, राइट? डॉट नेम इज व्हाट, दैट इज द मेंबर. सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, राइट? जैसे यहाँ पे आप देखो, जब s1
पहले स्टूडेंट का नाम इनपुट कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर राइटिंग s1 डॉट नेम। जब दूसरा स्टूडेंट आया सो वी आर राइटिंग s2 डॉट नेम। तो यहाँ पे नेम इज द मेंबर, नेम दोनों में सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम किसके नेम की बात कर रहे हैं, s1 के, और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, s2 के। राइट, सो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द members of a structure. Then there is another operator that is arrow operator. Okay, so whenever we want to access the structure थ्रू अ पॉइंटर, जब भी हम किसी पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ डॉट ऑपरेटर वी यूज एरो ऑपरेटर। ओके, एवरीथिंग एल्स वुड बी सेम। द ओनली डिफरेंस इज कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वेरिएबल हियर वी आर हैविंग अ पॉइंटर वेरिएबल। सो पॉइंटर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, सॉरी एरो मेंबर नेम। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे p जो है, p इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। So what we are writing p arrow name. Okay. So this is how we define a structure, and this is how we access the members of a structure. Right. Thank you so much.